So we are starting with the urinary system. So this also I will upload today, but I would again request you, Systemic Histology 1 lecture. Please watch it on Anatomy by Dr. YJB. Urinary system has few organs: kidneys, ureters, and urinary bladder, and urethra. Okay. Of this, in the exam, you are asked 3 slides: histology of kidney, histology of ureter, and histology of urinary bladder. Kidneys are bean shaped, beans are kidney shaped. Okay. So when we teach you about beans, teachers, they tell you beans are kidney shaped. When we teach you about kidney, we tell you kidneys are bean shaped. Before we go to the histology of the kidney, even a naked cut section shows cortex and medulla shows pyramids. बरोबर? मेडुला shows pyramids. इतना तो आपने 12th में भी पढ़ा है. ये यूरेटर है, and ureter has a pelvis dilatation, pelvis. Then pelvis forming major calyces and then minor calyces. Right? And this minor calyces exactly embrace the tip. Minor calyces, देखो minor calyces यहाँ जा रहा है. It exactly embraces the tip. It exactly embraces the tip of the pyramid, apex of the pyramid, which is called papilla. So each pyramid has a base and an apex called as papilla, and papilla opens into a minor calyces. Papilla opens into minor calyx. Minor calyx open into major, major opens into. Then above each of the pyramid are cortical arches. Above each pyramid are cortical arches. Inside the cortical arches, the medulla मतलब pyramid. Medulla extends inside the cortical arches as medullary rays. So medulla extends into the cortex as medullary rays, which are collecting tubules. ये medullary rays किससे बने हैं? वो collecting tubules. ये collecting tubules यहाँ पे आएंगे और then they form papillary duct. Papillary duct opens into minor calyx into major calyx and pelvis. So these medullary rays are nothing but collecting ducts. Then they enter into pyramids. Cortex also extends into the medulla. In between the two pyramids. These are called as renal columns. Renal columns is extension of cortex in the medulla. Medullary rays are extension of medulla into the cortex. Now before we go into the details of the functional unit of the kidney, which is nephron, let us talk about the arteries. Now the renal artery enters the medulla
and divides into what arteries? Lobar arteries. Then lobar arteries further divide into interlobar arteries. This is the interlobar artery. The interlobar artery then becomes arcuate artery. Okay? Okay. Now, this is a functional unit, that is nephron, which is, there is Bowman's capsule. From Bowman's capsule is PCT, proximal convoluted tubule, and then loop of Henle, thin part, then uska thick part. So this is loop of Henle, this is PCT, loop of Henle, this is DCT, and DCT opens into collecting duct opens into papillary duct, that opens into minor canal, that opens into major canal. Now what is difference between the PCT and DCT? And before that, this is Bowman's capsule, then there is afferent arteriole, right? Then there is this whole capillary plexus called as glomerulus, and then there is efferent arteriole, afferent arteriole. The lumen of efferent arteriole is smaller than afferent arteriole. Lumen of efferent arteriole, suppose ये afferent arteriole का lumen है तो efferent का छोटा है. That creates a pressure. So lumen of afferent arteriole is larger than efferent. Efferent is smaller. That creates a pressure, because of which there is glomerular filtration. Now these cells here, they are called as podocytes. The cells lining the glomerulus are called as podocytes. Now I am drawing a picture of a typical podocyte for you. The podocyte has a primary process. This is the primary process. So this is the podocyte, which has a primary process, and then it has secondary process. Primary process and second. So these are secondary process. This is primary process and these are secondary processes. तो ये सेकेंडरी प्रोसेसेस जो है वो जाके यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है ना, ये पोडोसाइट्स यहाँ पे है, पोडोसाइट्स यहाँ पे है, तो ऐसा ग्लोमेरुलस ऐसा नहीं है जस्ट गुंता गुंती इधर हो रहा है उसका, ऐसा नहीं है. वो हर एक कैपिलरी के ऊपर वो पोडोसाइट ऐसा पकड़ता है, उसके प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस. और ये जो सेकेंडरी प्रोसेस से दे ऐसे काइंड ऑफ इंटरलॉक. ओके, एंड हियर between the secondary processes is a slit diaphragm which kind of acts as a filter. So these podocytes, they actually go on the capillary. So this is a capillary. Capillary के ऊपर जाता है. Okay, and then on the secondary processes are slit diaphragms. Through this slit diaphragm, the glomerular filtrate comes here. अरे glomerular filtrate उसको कुछ मतलब ही नहीं है. उसको फिल्ट्रेट क्यों बोलते हैं मालूम है? उसमें सब कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एवरीथिंग, सोडियम, essential thing, everything is one. Everything. Okay? तो उसमें से in the PCT things are reabsorbed. Therefore, a typical PCT cell, suppose ये PCT है,
A typical PCT cell will show microvilli. A typical PCT cell will show microvilli. Microvilli are extensions of cell membrane. Villi, what are villi? In the mucosa. So your concept should be clear. Villi are there in duodenum, ileum. So mucosa का projection है. Microvilli are projection of cell membrane. Cilia, hair-like projections which are provided with ATP. So वो हिलता है. Cilia हिलता है. Okay. Stereocilia, they are similar to cilia, but they don't have a ATP at below, so they don't move on their own, so they are in the middle ear. तो वो stereocilia organ of corti में होते हैं. Flagella, so it's a elongated cilia which is there in the sperm. Okay, so villi, where is villi present? Duodenum, jejunum, ileum. What is microvilli? Cell membrane. So this is wherever absorption has to take place. What is cilia? Hair-like projections which actively move. They are in the respiratory system, which actively move. Then what is stereocilia? They are similar to cilia, but they don't actively move. And what is flagella? It is a elongated cilia. Okay? So cells of PCT will show microvilli. Wherever there are microvilli, where we want to do absorption. So intestine में भी microvilli भी होंगे, उसके ऊपर जो सेल है उसमें microvilli भी होंगे. जिधर जिधर हमको सरफेस एरिया बढ़ाना है वहाँ पे माइक्रोविलाई होता है. देखो ये एक सरफेस एरिया जहाँ से एब्सॉर्ब हो रहा है, और इसको मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे कितना सरफेस एरिया मिलता है. बिकॉज इधर जो इतना उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, उसमें से खाली 1.5 लीटर ही मुझे यूरिन में कन्वर्ट करना है पूरे दिन में. उसमें लिटरली एक दिन में हजारों, मतलब ऑलमोस्ट लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं. मर जाएगा आदमी अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो. उसमें से खाली 1.5 लीटर बाकी सब एब्सॉर्ब होता है पीसीटी में. देन लूप ऑफ हेनले है. लूप ऑफ हेनले गोज एक्चुअली इनसाइड द मेडुला. तो लूप ऑफ हेनले ना ऐसे यहाँ पे चला जाएगा. लूप ऑफ हेनले, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले? एनीबडी? या to concentrate the urine, and then there is DCT. तो DCT और PCT के सेल में क्या डिफरेंस है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं. नो माइक्रोविलाई. और DCT में यहाँ पे निकालो, और ये सेल है, एक सेल है. इधर कैसे, इधर माइक्रोविलाई नहीं रहता इधर, लेकिन बेजल इनफोल्डिंग होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. बेजल इनफोल्डिंग होगा. क्या होगा? बेजल इनफोल्डिंग, एंड बिटवीन द बेजल इनफोल्डिंग्स विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया? Active transport of sodium ions into the Yeah. blood. So here what happens is active secretion happens. Here absorption happens,
इट इज नॉट सिलेक्टिव, बट इसमें बहुत सारा चीज ऐसे ही एब्सॉर्ब होता है। इसमें सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन भी होता है एंड सिक्रीशन भी होता है। तो ये जो है पीसीटी में जो होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण होता है, बिकॉज जो हमारा आर्टरी यहाँ से बाहर निकलता है, दे फॉर्म द प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं ना, यहाँ पे कैपिलरी प्लेक्सिस इज देयर अराउंड पीसीटी। तो बहुत सारा चीज वो दे देते हैं बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ओनली थिंग्स को। बट यहाँ तक यूरिन कॉन्सेंट्रेट होके आता है डीसीटी में। नाउ डीसीटी को लगता है अरे सोडियम क्या कितना है, पोटेशियम हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट। सो दैट्स हाउ DCT is involved in active secretion and selective reabsorption. Selectively things को लेना है against the gradient जैसा भी, and therefore there is basal infoldings with mitochondria. तो basal infoldings में से so that here surface area नीचे का increase कर रहे हैं, so that यहाँ से blood vessel में हम भेज सकें। Okay? और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया। देन देयर आर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट ऑब्स्टेकल, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। डस्टर। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया वो था कि आप इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, पीसीटी का डिफरेंस क्या है डीसीटी का। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया नहीं, बट शायद आप 12th में किडनी सम हो बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं आप, तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी एक जगह पास में आते हैं, एंड स्पेशली एट द कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन दे आर कॉल्ड एज extraglomerular apparatus, where these cells of the cells of the afferent arteriole, they are called as extraglomerular cells. No, they are called extraglomerular cells. और ये these cells they are called as macula densa. तो extraglomerular cells के अंदर क्या होता है? ग्रैन्यूल्स होते हैं। वो ग्रैन्यूल्स कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं? उसके अंदर क्या होता है? रेनिन। ओके, उसके अंदर होता है रेनिन। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर होते हैं ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर होता है रेनिन। दिस रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिन इन द blood. It acts on the angiotensin in the blood. Whenever the blood pressure falls, it acts on angiotensin in the blood and converts it into angiotensin 1. This angiotensin 1 is taken to the lung where it is converted to angiotensin 2. Angiotensin, angio blood vessel, tensin tense करना, angiotensin ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ओके, रेनिन इज देयर इन द एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स apparatus. It acts on the angiotensin in the blood, converts it into angiotensin 1, which goes to the lung. So angiotensin 1 is formed in kidney, 2 is formed in lung, and then it acts. So kidneys are very important organs in blood pressure regulation. Also the lungs. So kidneys are affected, blood pressure is affected. Blood pressure is affected, kidneys are affected. अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी हो गए तो वो एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट खराब हो जाता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। ओके, बट नाउ हाउ द स्लाइड लुक्स लाइक, ये सब मैंने बताया। तो स्लाइड कैसे दिखता है? किडनी का स्लाइड, उसमें
आपको दिखेंगे, इससे पहचानते हैं आप। ग्लोमेरुलस, उससे पहचानते हैं। बाउमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस together they are called as Malpighian. So you see Malpighian bodies, और बाकी PCT, DCT आजू बाजू में दिखेंगे। जो बड़े हैं वो PCT, जिसका लुमेन छोटा है वो DCT, जिसका लुमेन एकदम बड़ा है वो CT, collecting tubules. Okay, so this is how you identify the slide of the kidney. फिर उसमें वो पूछेंगे PCT क्या डिफरेंस है, DCT PCT तो माइक्रोविला है, बेसल इनफोल्डिंग्स। फंक्शनल क्या डिफरेंस है, एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन। ओके, इसके बाद दो स्लाइड्स और है, एक है यूरेटर, दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर का डायमीटर कितना है? बोलो, 12वीं के बच्चों बहुत नाच रहे थे, किडनी को सिखा रहा था मैं तो भी। बोलो 3 मिलीमीटर्स, और वो मालूम रहना क्यों जरूरी है? स्टोन कितनी मिलीमीटर का है, वो बाहर जाएगा कि नहीं, ये उसके ऊपर डिसाइड होता है। जब बोलते हैं स्टोन ऑफ 5 मिलीमीटर, जाएगा थोड़ा सा डायलेट करके। ओके, स्टोन ऑफ 7 मिलीमीटर जा सकता है, स्टोन ऑफ 2 सेंटीमीटर नहीं जाएगा, स्टोन ऑफ 2 सेंटीमीटर नहीं जाएगा। सो नाउ द एपिथेलियम, वो तो आपको मालूम है, एपिथेलियम ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर इज यूरोथेलियम। व्हाट काइंड ऑफ एपिथेलियम इज दैट? 12वीं के बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बहुत नाच रहे, फुदक रहे, मैं अभी आपको बताता हूँ। व्हाट आर अम्ब्रेला सेल्स? How they manage to stretch themselves? They are like a constricted umbrella. You stretch. फेंको फेंको। तो 12वीं के बच्चों, अभी मैं आपको कुछ सिखाने वाला जो आपको मालूम नहीं और मुझे मालूम है। तो अम्ब्रेला खुलता है और अम्ब्रेला बंद होता है, जिंदगी भर याद रखूंगा मैं अभी। तो टॉप लेयर्स डॉक्टर रानडे, ये टॉप लेयर है। यूट्यूब पे अभी आप सब दुनिया आपको पढ़े ढूंढेगी कौन थे डॉक्टर रानडे, जिन्होंने अम्ब्रेला खुलना और बंद हुआ बोला करके। बट आई अप्रिशिएट कि आपको एटलीस्ट अम्ब्रेला सेल्स मालूम है। सो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसिकली सेल्स डोंट फ्लैटन एज टुवर्ड्स द 2 to 3 लेयर्ड रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी अम्ब्रेला खुलता है और बंद होता है, बराबर है, उसमें भी यू आर करेक्ट, आई अपोलोजाइज, यू आर करेक्ट। बट वो कैसे खुलता है और बंद होता है ये आपको मालूम नहीं है, तो ये अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ना देयर आर थिक and thin zones, thick zones and thin zones। तो जो thick zone है, those thick zones they go in like this, they fold amongst themselves, thick zones। Okay, so this is the same epithelium for urinary bladder and ureter। Consider now urinary bladder, because उसमें डायलिटेशन ज्यादा होता है, यूरेटर में नहीं होता है इतना डायलिटेशन, अनलेस स्टोन है वगैरह। तो ये आप समझो कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिथेलियम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। दोनों का एपिथेलियम सेम है।
तो ये थिक जोन्स जो है वो थिक जोन्स ऐसे फोल्डेड रहते हैं। ब्लैडर का कैपेसिटी क्या है? हाँ, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, हाँ, 220 तक जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सबसे फनी क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके आंसर सुनने को। person gets the first sensation of urine at 220 ml। तो आदमी जब बस से ट्रैवल कर रहा है, पुणे मुंबई वॉल्वो, आप देखेंगे लोगों को तो वो ऐसे जाते हैं ड्राइवर के पास, अगला स्टॉप कभी है? तो ड्राइवर बोलता है अभी 20-25 मिनट के बाद मॉल आएगा। क्यों? नहीं ऐसा ही पूछा, मतलब 220 ml। उसको सेंसेशन आया है तो आया ही है, तो वो जस्ट पूछने को जाता है। तो जब आप बस में बैठे ड्राइवर के पीछे और कोई आता है और पूछता है अगला स्टॉप कभी है, तो उसको बोलने का भाई 220 ml क्या? 220 ml, हाँ, 500 ml इट बिकम्स पेनफुल। ओके, तो अगला स्टॉप वगैरह कुछ नहीं बोलता है, वो ड्राइवर के पास जाके बोलता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बिकॉज पेनफुल हो जाता है उस। ओके, 1000 ml पे उसके बाजू वाला ड्राइवर के पास में जाके बोलता है भाई व्हाई डिडंट यू स्टॉप, दैट इज द लास्ट लिमिट। उस पे बर्स्ट भी हो सकता है ब्लड। हाँ, तो ज्यादा खेलो मत कैपेसिटी के साथ। हाँ, सर ने बोला था 220, अभी तो सेंसेशन आया है 500, हाँ जरा पेनफुल हो रहा है, बट ठीक है ना, सर ने बोला था 1000 तक तो चलता है। बाद में फूटा अंदर, मेरे को बोलने का नहीं, इज्जत से ना 250 टू से 1300 जरा सेंसेशन आया, जाके आने का। इट्स ऑलवेज फ्लशिंग the bacteria which are entering the urethra, because urethra in females is only 4 centimeters. In males it is around 15 centimeter plus 18 centimeter, because there is lot of pelvic part is there in the urethra. Okay, pelvic part and phallic part. So therefore males are less susceptible for urinary infection. Females are more susceptible with a small urethra of 4 centimeter. तो बैक्टीरिया आराम से ट्रैवल, तो जितना पानी पियोगे, जितना यूरिन पास करोगे, उतना इन्फेक्शन कम होगा। फिर भी गर्ल्स जो है पानी भी नहीं पीते, वो ये इतना सा बॉटल कैरी करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर मिलता है ना वो, और वो भी आधा ही लेके जाते घर पे वापस। क्या है दरिद्री पन्ना, पियो ना पानी। और मेल्स हमारे कैसे पीते पानी, आपने कभी देखा रहेगा, आपने कभी आपके क्लास में जो बॉयज रहते हैं उनको आप गलती से बॉटल मांगते, खत्म करके वापस देता। अरे भाई, ये दूसरों का ख्याल करो यार, कुछ दूसरों का ख्याल करना चाहिए। महाभारत में जो अंतिम जर्नी है ना पांडवों का, ऐसा तो एक जन गिरता है, पहले एक नकुल गिरता है, सहदेव, तो भीम हर बार धर्मराज को पूछता है ये तो हम लोग तो इतने अच्छे थे, फिर ये स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंचा? बोलता ये बहुत अपने आप को सुंदर समझता था, ये अपने आप को होशियार समझता। अर्जुन गिरता है, पहले द्रौपदी गिरती है तो बोलती वो पार्शियल थी थोड़ा सा, इसको ज्यादा पसंद कर। अर्जुन गिरता है तो वो कुछ भी वाउज लेता था। फिर भीम खुद गिरता है, तो 2 ही लोग बचे ना, भीम और धर्मराज। स्वर्ग तक पहुंच, तो मैं क्या किया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं जन्नत तक? बोलते तू, क्योंकि तू खाने के टाइम दूसरों का ख्याल नहीं करता था, इसके लिए वो नहीं पहुंचा। हम लोग कैसे वो गांव में जाते हैं, मैंगोज आते हैं, हर फोड़ को चक के रख देते, वहां मैंने सब उष्टा कर लिया है। या घर में पिज्जा आता है, रखते हैं क्या आप कि बाबा ये मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, या ये फादर के लिए, मदर के लिए, जोमेटो। तो ये भीम क्यों नहीं पहुंचा वो? ही डिडंट थिंक ऑफ अदर्स। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये पॉइंट
पानी पीते समय बॉयज गर्ल्स का बॉटल लेके खत्म करके नहीं देने का किसी का। एक तो आप खुद बॉटल नहीं लाते, ओके, और गर्ल्स आर वेरी सिंसियर, वो बॉटल लेके आते हैं, तो पानी पीते रहो। तो लेट्स गो टू द यूरिनरी ब्लैडर फर्स्ट। इसके नीचे देयर इज अ मसल, स्मूथ मसल, जिसका नाम है डेट्रोसर। पूरा आड़ा टेढ़ा फाइबर्स होता है, आड़ा टेढ़ा फाइबर्स। So urothelium, detrusor, of course, adventitia serosa will be there. In case of ureter का जो स्लाइड है, एक तो पहले उस स्लाइड पे ना, अगर मैं बोलता हूँ 3 मिलीमीटर डायमीटर है, ये तो मैंने बहुत लंबा दिखा है। स्लाइड आप कैसे पहचानते मालूम है क्या? यूरेटर का ऐसा ये यूरेटर है, हाँ 3 मिलीमीटर। पाइप नहीं है वो, ओके, आपके खेतों में पाइप रहता है वैसा नहीं है, चिंटू सा। मैं इधर बड़ा निकाला, फिर उसके अंदर ऐसा लुमेन रहेगा ऐसा, ये लुमेन पे अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, फिर सर्कुलर लेयर, फिर लॉन्जिट्यूडनल लेयर, और लोअर पार्ट में, लोअर 1/3 ऑफ यूरेटर में इनर लॉन्जिट्यूडनल भी रहता है। सो लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर विल हैव इनर लॉन्जिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, एंड अपर 2/3 में इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। ये आपको मालूम था? हा, मुझे मालूम था, तो आपको 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये मालूम। हाँ, थैंक यू, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। Could you repeat? So in the upper 2/3 of the ureter, we have inner circular, outer longitudinal, smooth muscle layer, and in the lower 1/3, we have additional longitudinal layer inside. So in the lower 1/3, there will be inner longitudinal, then circular and outer longitudinal. When in upper 2/3 there will be inner circular, outer longitudinal. So एक additional longitudinal layer lower 1/3 में आता है, because यूरिन जो है वो ग्रेविटी से नीचे नीचे जाएगा। ऑफ कोर्स ये मसल्स भी, स्मूथ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट मेन लोड जो है लोअर 1/3 पे आता है ना, तो और वहां से वो पुश करके ब्लैडर में डालना है। तो वो तो ग्रॉस एनाटॉमी में आप सीखोगे कि कैसे ये ऐसा यूरेटर्स ऐसे ओपन होते हैं जाके, so that when bladder contracts this urine does not go up, so there is a valve like mechanism over here. ये यूरेटर के जो स्मूथ मसल्स है, आज आप अच्छे हो, हेल्थ अच्छा है, आज आपको इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर जब एक स्टोन आएगा ना, तो ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं तमाशा, तभी आपको समझेगा। Patient is dancing when stone is there in the ureter. Patient कुछ नहीं कर सकता वो, absolutely dancing on the bed. वेरी पेनफुल। आपने कितने देखे यूरिनरी स्टोन के पेशेंट किसी आपके घर में, आजू बाजू में? कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पानी पीते रहो और ये अवॉइड करो, वो ऐसा दुखता है ना बेकार। सो देयर आर 2 स्टोन्स, वन इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन्स, वो किडनी के अंदर है, कुछ नहीं, आदमी 5-6 स्टोन लेके जिंदा है, मरता भी है उसी के साथ, बट उसमें से एक भी इसके अंदर आ गया ना, फिर वो जीते जी मरता है। उसके बाद वो स्टोन आता है यहाँ पे ब्लैडर में, उधर भी बहुत तकलीफ होती है। ब्लैडर कैंसर्स, बिफोर आई एंड दिस क्लास टुडे, ब्लैडर कार्सिनोमा,
I'd like to speak on this. People who suffer from bladder cancers are the people who work in color factories, chemical factories, जिसमें उनके हाथ वगैरह उसमें इन्वॉल्व थे और वो बराबर से धोते नहीं थे हाथ और उसी के साथ खाना खाते थे, तो वो केमिकल बॉडी में जाता था, फिर वो किडनी में से ब्लैडर में, और यहाँ पे वो केमिकल, और लोग यूरिन कितना 2-3 घंटे में पास होता है, तो 3 घंटा वो केमिकल यहाँ पे ब्लैडर के कांटेक्ट में. ओके, सो देन वो ऐसा दिन भर शाम को फिर वापस खाता है, हाथ नहीं धोता है बराबर से, सो दैट केमिकल इज एंटरिंग इनटू द ब्लड. दैट्स हाउ people working in this factories involved in coloring things, coloring items, production of various colors, where hands of the employees were not properly protected. पहले तो ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? Because then people apply color on their hair, and that hair they wash every day, और उसमें से फिर वो पानी थोड़ा सा इधर जाता है. आपने कभी सुना है क्या कि हेयर को कलर नहीं करना चाहिए, ये डेंजरस है, उससे कैंसर हो सकता है? तो वो कैसे होता है? तो वो कलर कैंसर ऐसे होता है वो. So any chemical which is going inside our body, kidney is what? Kidney is detoxifying organ. It will detoxify it, send it to bladder. लेकिन ब्लैडर तो आप घड़ी तो नहीं करते हैं, ओ एम्प्टी, राइट? ब्लैडर आप कभी एम्प्टी करते हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा. कुछ चैंपियन लोग रहते हैं जो दिन में 1 ही बार 2 बार ऐसे भी लोग रहते हैं. ओके, सो देन पड़ा रहता है ना वहाँ पे वो केमिकल. सो देयरफॉर वी से ना अवॉइड केमिकल्स. हम लोग ये भी सुनते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स के कारण, हाँ आई एम ऑलमोस्ट डन, इंसेक्टिसाइड्स के कारण कैंसर होता है. वो फल है, वो क्या करो, क्या करके खाओ? धो के खाओ, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल है. वो केमिकल फिर आपके अंदर जाएगा, फिर किडनी से ब्लैडर से यहाँ. See, I am not just a teacher, anatomy teacher. मैं आपके लाइफ का कोच हूँ. मैं आपको बता के छोड़ूंगा. नेक्स्ट टाइम फिर आप जब एप्पल खरीदोगे, मेरा फोटो दिखेगा, सर धो के खाओ नहीं तो ब्लैडर कैंसर हो जाए. तो जितना हो सके केमिकल शुड नॉट गो इनसाइड, बिकॉज दैट कैन कॉज कैंसर. विद दैट आई स्टॉप द हिस्टोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम. थैंक यू सो मच.